Good morning, student. Welcome back to Urban International School. How are you? I hope you're fine. Be safe at home. So, student, in the second part of the video of lesson number 21, that means the world in my home, we have saw about story of Meena auntie and Akshay and Anil. Okay. So, in the story of Meena auntie taught a lesson of honesty to her children and their friends. Okay. And in the story of Anil and Akshay was still confused. What should I do? कि उसे क्या करना चाहिए? Because in their friends, Akshay's Dadi said that not even drink a glass of water from Anil's house. So that story we have seen about story of that two boys Akshay and Anil. Now today in the today's video we are going to see about two new more stories, and what we are going to teach in this story, we are going to learn about who will decide, and the next one about good touch and bad touch. So first of all, open your textbook, page number 163 you have to open. Now I am starting reading. You also keep your pencil on that line. So today's story is about who will decide, यानी कौन decide करेगा. See here, we are in this picture. One is a aged older man is there, and one is a small child is there. Not a child, a young boy is there. Okay, and a picture of flour mill, and here tractor and farming is there. So what we are going to see, let's see the first. Karsan comes from a large family. Karsan means a name of this boy. He comes from a large family. उसकी family क्या थी? काफ़ी बड़ी थी. His elder uncle looks after the family. उसके एल्डर अंकल यानी उसके बड़े अंकल, हम बड़े पापा कहते हैं ना, वो क्या करते थे? घर का पूरा ख्याल रखते थे. देयर फील्ड्स, मनी मैटर्स एक्सेट्रा, यानी उनके खेत खलियान जो थे, घर के जो पैसों के जो बारे में था, मनी मैटर्स थे, वो सारे कौन हैंडल करता था? करशन के बड़े अंकल. ओके. He decides about all the small and big things for the family. वही क्या थे? बड़े थे, और घर में जो भी छोटे बड़े डिसीजन लिए जाते थे तो उन्हें ही पूछ के, उनसे ही बात करके वो सारे डिसीजंस घर में लेते थे, बिकॉज वो क्या थे? घर में सबसे बड़े थे. Till now Karshan has worked in the field. अब तक क्या कर रहा था करशन? खेती में ही काम कर रहा था. But now he wants to do something different. अभी उसे कुछ अलग करना चाहिए था. उसे कुछ अलग करने की कोशिश वो करना चाहिए था. देखो उसको क्या करना था नया? He would like to borrow some money from a bank and buy a chakki, that is a flour grinder machine, to grind grains. Now he want to take some loan from a bank and buy a new chakki machine to grind grains. That is means flour grinder. जो चक्की होती है ना घर में, तो वैसे ही उसे एक बड़ी सी चक्की उसे ग्राइंड करने के लिए, यानी ग्रेन ग्राइंड करने के लिए अपने गांव के लिए उसे लेनी थी. उसको एक कुछ अलग करना था, एंड उसे इसलिए बैंक से क्या करना था? कुछ लोन था, वो उसको लेके एक फ्लोर की चक्की उसे खरीदनी थी. देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज. ऐसे मशीन किसी के पास नहीं थी, तो उसको फ्लोर मिल ओपन करना था. ओके. सो कर्सन इज कॉन्फिडेंट दैट this new work will help him to earn more money for his family. So Karsan is very confident about that. There is a no flour machine, flour grinder is there in our village, so I will take this machine and I will help our family to earn more money for his
फॉर हिज फैमिली। उसको ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूँगा, ये फ्लोर मशीन खरीद के अपने घर के लिए ज़्यादा पैसे में कमा सकता हूँ। ओके, फादर हैज़ अग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। कर्सन के पापा भी क्या थे, काफ़ी एग्री हो चुके थे, क्योंकि उसके बेटे को कुछ नए आइडियाज़ थे और उस आइडियाज़ से क्या करना चाहता था, वो कुछ नया काम शुरू करना चाहता था। बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीइंग टू दिस। पर उसके जो एल्डर अंकल थे, बड़े काका थे, बड़े पापा थे, वो उसके लिए एग्री नहीं हो रहे थे। और घर के सारे डिसीजन कौन लेता था, एल्डर अंकल ही लेते थे। और कर्सन, देखो पिक्चर में कर्सन क्या कर रहा है, अपने अंकल को समझा रहा है, कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि वो क्या करना चाहता है, कुछ अलग काम करना चाहता है और उसके बाद कुछ ज़्यादा मनी वो अपने फैमिली के लिए कमाना चाहता था। पर उसके अंकल इस बात के लिए एग्री नहीं हो रहे थे। एंड ही इज़ ट्राइंग। कर्सन के पापा क्या थे, एग्री हो चुके थे, पर घर के जो भी मनी मैटर्स थे वो कौन हैंडल करता था, कर्सन के एल्डर अंकल। सो वो उसके अंकल को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसके अंकल उसके लिए एग्री नहीं हो रहे थे। बिकॉज कर्सन हैविंग अ न्यू आइडिया ऑफ अर्निंग सम मोर मनी, बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीइंग फॉर दिस। See the next, turn your page, talk about this. First one, if you were in Karson's place, what would you do? अगर आप कर्सन्स की प्लेस पे होते और आपके दिमाग में भी कुछ नए आइडियाज़ होते, सो व्हाट वुड यू डू दैट टाइम? तो आप उसे समझाने के लिए, अंकल को समझाने के लिए आप क्या करते, आप उसको कैसे एग्री करवाते, उसको कैसे समझाते, क्या बताते उनको, तो ये आपको डिस्कस करना है। Second one, has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है कि आपको कुछ और ही करना है ना, पर आपकी जो भी एल्डर्स है घर में, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए। जैसे कि कभी आपको कुछ अलग काम करना होता है, कुछ क्रिएटिविटी करनी होती है, पर हमारे बड़े क्या करते हैं, एल्डर्स क्या करते हैं, हमें वो अलाउ नहीं करते। आपके साथ भी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? अगर हुआ है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन, हु टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली? आपके घर में भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होता है फैमिलीज के लिए, वो कौन लेता है? एंड द नेक्स्ट वन, हाउ वुड यू फील इफ ओनली वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली? और आपको कैसे फील होगा कि कोई एक ही पर्सन पूरे फैमिली के लिए ही डिसीजन ले ले, वही डिसाइड करे कि फैमिली में क्या होगा। तो ऐसे अगर आपके घर में होता है, आपके फैमिली में होता है, तो आपको कैसे फील होगा कि एक ही पर्सन है, कोई तो एल्डर, और वो बिना किसी से कुछ भी बात सुने वो क्या करेगा, अपने डिसीजन ही अपने ऊपर लगाएगा। तो ऐसे डिसीजन अगर कोई एक ही पर्सन लेता है तो आपके घर में, तो आपको कैसा फील होगा, इस बारे में आपको बताना है, डिस्कस करना है। सो आई विल गिव आंसर्स ऑफ दिस ऑल द क्वेश्चंस इन योर वर्कशीट। ओके, और जब तक वर्कशीट नहीं आती तब तक आप क्या करोगे, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज नाउ इन अ कमिंग डे you are not coming at school, so no classmates you are going to meet nowadays, so you have to talk with your friends. The next one, I don't like it. Now a big issue, I don't like it. हम क्या करते हैं, बहुत सारी बार कहते हैं दिन भर में, आई डोंट लाइक इट। इफ़ योर मम्मी सर्विंग यू सम न्यू डिशेज, यू आर डायरेक्टली सेइंग दैट आई डोंट लाइक इट। इफ़ योर मम्मी इज going to give you some things, you directly telling that I don't like it. हमेशा क्या कहते हो आप, ये कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है, I don't like it. But here in this story, a new topic we are going to discuss about I don't like it. So see in the picture, page number 164, two girls are there. One girl is holding a hand of second girl and she is trying to take that girl in her house. जैसे कि डोर है वहाँ पे, एक लड़की क्या कर रही है, दूसरे का हाथ पकड़ के अपने घर की तरफ उसे लेके जा रही है। So what is the matter, what is the story? Let's see. First one,
I don't like it. Meena and Ritu were going home after playing Langdi. जैसे ही we are playing each and every day at the evening, in the morning. So these two girls, Ritu and Meena, they are also playing near their home. And after some time, they are coming after playing Langdi. Come on, come to my house, played Meena pulling Ritu's hand. जैसे कि मीना ने क्या कहा अपनी फ्रेंड रितु से, उसका हाथ पकड़ के, चलो अब क्या करें, मेरे घर चलते हैं. इज योर अंकल एट होम? इफ ही इज आई विल नॉट कम, रितु आंसर. तो रितु ने वैसे ही मीना से क्या कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अंकल अभी घर पे है, अगर वो है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, आई विल नॉट कम. वाई शी टोल्ड लाइक दिस टू मीना? लेट्स सी. रितु ने क्या किया, ऐसे ही पलट के झट से जवाब दे दिया. अगर मैं तुम्हारे घर पे आना चाहती हूँ कि पहले बताओ कि तुम्हारे अंकल घर पे है, अगर वो है तो मैं नहीं आऊँगी. वाई शी सेड दैट? लेट्स सी. बट वाई डू यू से दैट? अंकल लाइक्स यू. और मीना ने क्या कहा कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि तुम्हारे अंकल घर पे है, पहले ही क्यों पूछ रही हो, मेरे अंकल को तो तुम बहुत पसंद है, बहुत पसंद हो, अंकल लाइक्स यू. He was saying, bring your friend Ritu at home, I will give you both of you lots of chocolate. Now Meena is saying to Ritu that my uncle always saying that bring your friend Ritu at home, I will give to you both of you lots of chocolate. So bring your friend Ritu at our home. Who said that? Meena's uncle. And Meena said, my uncle likes you. मेरे अंकल को तुम तो बहुत पसंद हो. और मेरे अंकल क्या कहते हैं, अगर तुम तुम्हारी फ्रेंड को हमारे घर लेके आओगी तो हम तुम दोनों को क्या करेंगे, काफ़ी सारे चॉकलेट्स देंगे. But Ritu, what Ritu said? Ritu pulled her hand away from Meena's. तो रितु ने क्या किया, अपना हाथ मीना के हाथों से खींच लिया. एंड सेइंग दैट आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल, मैं तुम्हारे अंकल से काफ़ी डरती हूँ. आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल, आई डोंट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड. और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब वो मेरे हाथ को टच करते हैं. सेइंग दिस रितु वेंट होम. और ऐसे कहकर ही रितु ने क्या किया, रितु अपने घर चली गई. वॉट रितु से? रितु से दैट आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल और आई डोंट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड. सेइंग दिस रितु वेंट होम. वाई रितु सेड दैट? कैन यू टेल मी? Both are the small girls are there, Ritu and Meena. But Ritu having that much of sense that Meena's uncle's touch she don't like. Why it is so? Because in the standard third also we have taught about good touch and bad touch. That bad touch she is having बाय मीनाज अंकल. वैसे ही बैड टच उसे कब फील होता था, जब मीना के अंकल उसको टच करते थे, जब उसके हाथ को भी वो टच करते थे तो उसको वो टच अच्छा नहीं लगता था. दैट मीन्स शी वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ मीनाज अंकल. तो मीना के अंकल से वो क्या करती थी, काफ़ी डरती थी. जब भी वो उसका हाथ पकड़ते थे उसको वो टच काफ़ी पसंद नहीं था उसको, वो उससे बहुत डरती थी. इसलिए उसने वो मीना के घर जाना ही बंद कर दिया था. ओके, डू यू नो अबाउट द गुड टच एंड बैड टच? आप लोगों को भी पता होगा ना गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में. तो हम सबको क्या है बच्चों, एक सेंस होता है, सिक्स सेंस होता है कि कोई हमें टच करता है तो वो टच हमें कैसे फील होता है, गुड होता है या बैड होता है. ओके, तो वैसे ही रितु को क्या लग रहा था कि उसके अंकल से वो काफ़ी डरती थी और उसके घर जाने से भी वो मना करती थी. Understood about it? Yes or no? Yes. So we have to always aware about this good touch and bad touch. जैसे ही मीना और रितु एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे उसको वो फीलिंग नहीं आती थी क्योंकि वो उसे बैड टच नहीं लगता था. बट जैसे ही मीना के अंकल रितु का हाथ पकड़ते तो रितु को समझ में आता था कि ये टच क्या है, बैड टच है, और उसे वो
उसे वो लाइक नहीं करती थी. शी डोंट लाइक इट. दैट्स वाई शी इज़ नॉट गोइंग टू मीनाज होम आफ्टर प्लेइंग दैट लंगड़ी. ओके, शी वॉन्ट टू गो टू हर हाउस ओनली. Okay, let's see about some questions after this. First one, have you ever disliked anybody's touch? Whose touch did you dislike? आपको भी किसी का टच अच्छा नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो वो कौन है कि जिसका टच आपको अच्छा नहीं लगता है? तो आपको क्या करना है, ये डिस्कस करना है. सेकेंड वन, इफ़ यू वेयर एट रितुज प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह पे होते तो आप क्या करते? सो वी विल ऑल्सो डू सेम लाइक रितु. हम भी क्या करते, रितु जैसे ही करते कि रितु ने क्या किया था, अपना हाथ छुड़ा के पुल करके वो अपने घर चली गई थी. तो वैसे ही आपको सोचना है कि आप अगर रितु के प्लेस पे होते तो आप क्या करते. नेक्स्ट वन, व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन? डिस्कस. अभी ऐसी कोई चीज़ें होती है, सच थिंग्स व्हेन हैपन व्हाट वी विल डू. अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उस वक्त क्या कर सकते हैं. तो इसके बारे में भी क्या करना है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. एवरीबडीज टच इज़ नॉट द सेम. हर एक का टच क्या होता है, सेम नहीं होता. रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीनाज अंकल होल्ड हर हैंड. रितु को ये अच्छा नहीं लगता है कि जब मीना के अंकल उसका हाथ पकड़ते हैं. बट शी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड. बट उसे मीना का हाथ पकड़ना काफ़ी पसंद है. वाई डू यू थिंक देयर वॉज दिस डिफरेंस? तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों डिफरेंस, इस दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ऐसे क्यों है कि मीना जब रितु का हाथ पकड़ती है तो रितु को अच्छा लगता है, शी लाइक्स इट. बट व्हेन मीनाज अंकल होल्ड रितुज हैंड सो रितु डोंट लाइक इट. Why do you think there was such a difference in between these two things? तो आपको यही सोचना है कि इन दोनों के बीच में इतनी डिफरेंस क्यों है. Understood about it? Yes or no? Yes. So read this lesson 2 times, and if you having query, any question, any doubt, please contact me. Okay? Till then, thank you.